Hello and welcome to Health Matters. I'm Shweta Ranjan. COVID 19, the disease caused by the coronavirus that leads to the global pandemic, is known to damage the lungs. But as more people become infected, more understanding of the disease emerges. Doctors and researchers are finding that coronavirus can also cause severe and lasting harm in other organs, kidney being one such organ. So, to talk on the issue of kidney care, today we have with us Dr. Shyam Bihari Bansal, Director Nephrology and Kidney Transplantation, Medanta Medicity, Gurugram. I would like to extend a very warm welcome to the doctor, Dr. Shyam Bihari Bansal. Hello, doctor. Good morning. Welcome to the show. Good morning, Shweta. How are you? I'm. Thank you for the nice introduction. How are you doing these days? Oh, I'm okay, but the definitely things are difficult for most of the people, including doctors and every professional is facing the problem because of this pandemic. And we hope that we come out of this pandemic very soon and start our normal activities and people can come and do their work and meet each other. So we are all hoping for the best. तो डॉक्टर ऐसे में तो आपके पेशेंट्स बढ़े हैं या घटे हैं ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडेमिक अगर देखा जाए तो पेशेंट्स की संख्या में आप क्या देख रहे हैं इजाफा है या कम है? देखिए ओवरऑल तो पेशेंट्स कम हो गए हैं पहले से बिकॉज दी मैनी पीपल दे डू नॉट वांट टू कम देयर इज अ प्रॉब्लम in transportation also. The trains are not operating. People, even if they are operating, they don't want to travel by the trains or the public transport. They don't want to come for the some small things where previously they used to come. So by and large the patients have come down for 40 to 50% in my practice. I see across all these specialties. It's not only the kidney diseases but other specialties. But obviously the patients who are getting COVID positive and they are getting serious problem, they are getting admitted. But overall the patients are less. But the patient with serious problem with the other diseases, they are obviously they are coming. So the OPDs, for the general OPDs and for the regular follow-ups, they are not coming. And many of these patients, we are nowadays doing online consultation patients on, because a lot of patients to our center come from the far off places like Bihar, UP, and even other places. So we are doing online consultation. So the change in the practice as well. तो ये जो किडनी की प्रॉब्लम जो कोविड 19 से हम जोड़कर देख रहे हैं डॉक्टर सो ये कितनी हाउ कॉमन इज द प्रॉब्लम ड्यूरिंग दिस कोविड 19? See, uh, we can only estimate the kidney problem in COVID patients who are admitted in the hospital, because obviously there are many patients. There are, because this is a disease which becomes severe in only 10 to 15% of patients. So the patients who are hospitalized, about 5 to 10% of these patients have they develop kidney problem, and the patient who go to ICU, where this figure increases to 20 to 40%. So the patients who are sick, they are go to the ICU, they are more likely to develop kidney problem. And the patients who go on ventilator, then this figure further increases to 50 to 70%. So it depends on the severity of illness. कितना सीवियर हो जाता है डज इट लीड टू AKI और acute kidney Yes, disease? so there are two aspects of the disease. So one is the acute kidney injury. Acute kidney injury means there is a sudden deterioration of kidney function in the patients who had normal kidney function. Okay, so this becomes, as I said, in 5 to 10% of the hospitalized patient and 20 to 40% in patient with who are admitted to ICU. And the patients means about patients who are admitted in ICU, half of them with acute kidney injury, they require dialysis. So it becomes, if patient deteriorate, if he goes on ventilator, then the chances of requiring dialysis increases. But most of the patients who do not require ventilator, they usually improve without dialysis. So it depends on the severity of the illness. So it can get very severe and can require dialysis and other form of therapies. तो अगर हम इन जनरल देखें डॉक्टर
मतलब अगर एक हेल्दी व्यक्ति है और फिट है और फिर भी कोविड इन्फेक्टेड है अगर, तो उसमें बहुत ज़्यादा ये चांसेस नहीं होते हैं कि वो किडनी की समस्या से जूझे, ऐसा होता है? देखिए ये डिपेंड करता है। ये जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड यूजली आपके पास अगर कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, लिवर डिसीज़ है, हार्ट डिसीज़ है, सांस की तकलीफ है, ओबेसिटी है, दैट इज़ आल्सो अ रिस्क फैक्टर फॉर सीवियर डिसीज़। और अगर एज बढ़ती है तो ये सारे फैक्टर्स या इनमें से एक या दो फैक्टर जिनको होते हैं उनको सीवियरिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। But at the same time, even the younger people without comorbidity, even I was seeing a figure today in the paper that in Gurgaon, abhi tak 140 death, about 30% of the patient had no comorbidity. So it's not absolutely necessary that person should have comorbidity to develop severe disease. The chances are less, but then anybody can have a severe problem. So nobody should think that he is immune to this infection, but the chances are less. So if you have any of these conditions or your age is more, then the chances of severity are more. So if we do not include COVID-19 in the question, that means minus COVID-19 for a normal person, कैसे वो डिटेक्ट करे? व्हाट आर द सिम्पटम्स दैट उसके किडनी फंक्शन में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं या कोई दिक्कत आ रही है? एक नॉर्मल इंसान कैसे समझे? सबसे पहले तो हमें ये समझाना भी ज़रूरी है अपने दर्शकों को। देखिए, तो किडनी की प्रॉब्लम तो कुछ हाई रिस्क ग्रुप होते हैं जिनको किडनी की प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यूजली क्या है कि आप पूरी जो पॉपुलेशन है उसकी स्क्रीनिंग आप नहीं कर सकते, वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो जैसे जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको अपना एनुअल चेकअप करना चाहिए। मेनली दो टेस्ट होते हैं, एक होता है यूरिन में प्रोटीन की जांच करना, यूरिन एल्बुमिन एग्जामिनेशन, माइक्रो एल्बुमिन एग्जामिनेशन। दूसरा होता है किडनी फंक्शन टेस्ट, जिसमें यूजली हम यूरिया और क्रेटिनिन करते हैं। क्रेटिनिन का जो टेस्ट होता है वो किडनी फंक्शन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बट वो भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता। बहुत अर्ली स्टेजेस हो तो आपको उससे भी पता नहीं चलेगा। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिन लोगों को हाइपरटेंशन है, जिन लोगों की एज 65 से ज़्यादा है, जिनकी ओबेसिटी है, जो स्मोकर्स हैं, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, या फिर जिनको फैमिली हिस्ट्री है किडनी डिसीज़ की, या जिनको किडनी में स्टोन्स हैं, तो ऐसे लोगों को अपना ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। यूरिन में प्रोटीन की जांच, ब्लड में यूरिया क्रेटिन की जांच, और एक अल्ट्रासाउंड टेस्ट देखने के लिए कि किडनी में कोई स्टोन या कोई और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है। सो ऐसे लोगों को करना चाहिए। कितना फ्रीक्वेंटली करना चाहिए? यूजली वंस ए ईयर सफिशिएंट होता है। और जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर, उनको अपना शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना चाहिए, बिकॉज दीज आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 40% लोगों को किडनी में खराबी डायबिटीज़ की वजह से होती है, 20-25% लोगों को हाइपरटेंशन की वजह से होती है, जब ये चीज़ें अनकंट्रोल्ड हो तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वी हैव टू टारगेट अ ग्रुप। So let me tell my viewers to like the page if they are liking the program, because we bring to you such informative interactions हम अक्सर लेकर आते हैं, और कई और तरह के कार्यक्रम होते हैं आपके लिए। आप पेज को लाइक कर सकते हैं और जुड़े रह सकते हैं। और मैं दर्शकों के संदेश को इस समय इंक्लूड करना चाहूंगी। वी हैव आशुतोष शेखर, नमस्ते डॉक्टर श्याम ही राइट। वी हैव कश्मीरी खान के, गुड मॉर्निंग सर। अगर आपके पास कोई समस्या है, आप मन में कोई सवाल है, वो भी आप लिख के दे सकते हैं। रुद्रांश राइट्स, गुड मॉर्निंग डॉक्टर। संगीता रंजन राइट्स, स्टे सेफ। So there's one question coming from Rudransh. What are the long-term implications of AKI, acute kidney disease, जो है, on COVID-19 patients? सी अभी तो एक्यूट किडनी इंजरी के कोविड-19 में लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन कोई नहीं बता सकता, बिकॉज इट्स अ शॉर्ट टर्म डिसीज ओनली 6 months old. So who can say about the long term implication of COVID-19 AKI on COVID-19? See, so the just repeat the question. Long term implication of COVID-19 on AKI, AKI on COVID-19. What are the long-term implications of AKI? अगर किसी को acute एक kidney injury है, so COVID-19 patients पे उसका क्या implication? See, implication in the sense acute kidney injury usually occurs in the patient जो कि जिनको severe disease होती है।
if the patient has severe disease and he developed acute kidney injury, the chances of bad outcome are more in these patients. So long term implications तो अभी बताना मुश्किल है, but short term implication ये होता है कि इसमें chances of poor outcome are more. Yes, doctor. We have another question from Mukteshwar Singh. What are the implications of COVID on dialysis patients? So that is a very good question. What is the implication? Because dialysis patients, CKD patient means chronic kidney disease patient and dialysis patient in general, they are more susceptible for COVID-19. It has been seen in 2 or 3 studies that these patients are more likely to develop COVID-19. The one reason might be because these patients actually they travel to the hospital. Dialysis patient have to go to the hospital twice or thrice in a week, and so they get exposure to the various. They meet various people. They are in the closed area. So that is the reason why these patients are more susceptible. But it has been seen because this dialysis patients and CKD patient they are their immunity is less, so they are unlikely to actually get a severe immune deficiency. So what happens in severe stage of COVID-19 that you get a cytokine storm sort of thing, and because of the less immunity, these patients are more likely to have mild symptoms. Okay, so 20 to 30% of the dialysis patient they are not symptomatic. They would you will just detect the COVID-19, but then some of the patient. But overall, if you see, because these patients have more comorbidities, so most of the dialysis patient would have diabetes or hypertension or heart disease or any other problem. So once they develop COVID-19 at the same time, the chances of poor outcome or death are more in these patients as compared to general population. So, say there are two different things we should understand. One is that symptoms can be mild, but if they develop severe symptom and develop severe, the chances of poor outcome are more. So, if we see that overall mortality or death in COVID is about 1 to 6% in various countries, so the chances of death in patient with dialysis are 10 to 15%. So would be more than the normal population because of the other associated condition. Okay, so we have Muhammad Ashraf Ali sending a question. Cytokine storm is the cause of multi-organ involvement. What is the severity of cytokine storm in patients on immunosuppressive? Yeah, so Dr. Ashraf Ali is one of my transplant patients. So he is a doctor himself. So basically, patients on immunosuppression, uh, uh, see, as I said, because the patient who have lower immunity and patients who are dialysis or kidney transplant, usually the chances of cytokine storm are less. But as I said, because these patients, once they develop viral infection, so there are two parts of the COVID-19. The initial stage is the viral replication. Okay, so the viral chances of the viral replication are more in these patients, and chances of getting sick because of them are more. Then the second part is cytokine storm. So which is because once it affect the actually immune system of the body, and there is a release of more these mediator which is called cytokine, and they secondarily affect the multiple organs in the body. So this so patients who get sick they can get cytokine storm whether they are patient normal patients or they are patients on dialysis or they are patients on transplant. So at this time the severity is actually same in this all the patients who have either transplant or dialysis. And in these patients who develop cytokine storm, you have to use the therapies which are used in the other people, like in the general population. Like we use one of the drug which is called tocilizumab, that is interleukin 6 inhibitor, that is being used to control the cytokine storm. So you have to reduce the immunosuppressive drugs in these patients, and then if required, you have to use these drugs who can actually reduce the cytokine storm in these patients. Obviously, as I said, the chances of poor outcome are there as compared to general population because these patients have comorbidity, hypertension, diabetes, and all these things. So that makes them actually prone to develop complications. Right. So we have Atul Yadav sending a hello to you.
And one question is there from Madhurani Singh. She writes, can a patient with kidney disease do exercises during this time? Because Yes. people are not able to step out of their houses, those who used to take a walk or a stroll in the morning. So this is wrong actually. I've been telling. So this is in the society. I've been telling from the day one that you should not stop people from getting walk and all these things. Exercise is a very important part of you getting fit and have some immunity. So patient with kidney disease who did not had COVID, they should keep on doing the exercise, regular exercise, whatever they do, walking, running, yoga. They should avoid going to the gym and the public places. So that should be avoided because of catching. You can catch this infection in the gyms and all that. But you should continue all the exercise which you do before this episode. But keeping in mind the social distancing and everything. तो Secondly, एक्चुअली लाइफ नॉर्मल हो ही गई है डॉक्टर, जैसे सबको अब अपने काम पे जा ही रहे हैं। ये हाँ, सिर्फ हिफाजत आपके हाथ में है, मुझे लगता है कि आप अपनी हिफाजत कैसे करते हैं। यस, ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखिए, आपको वॉक करने से या फिर आपको कुछ और, अगर आप प्रॉपर ये क्लोज एरिया में अगर आप बैठे हैं, आपने डिस्टेंस नहीं मेंटेन की हुई है, आपने मास्क नहीं लगाया हुआ है और फिर आप बात कर रहे हैं, साथ में खा पी रहे हैं, तब आपको ये होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अदरवाइज अगर आप बाहर हैं, डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हैं, या फिर अगर आप पास में भी बैठे हुए हैं, आपने मास्क लगाया हुआ है और आपने एक प्रिकॉशंस ली हुई हैं, तो आपको ये होने के चांसेस बहुत ही कम हैं। So, Madhurani Singh is asking another question. Can I take Ayurvedic medicines for kidney? देखिए, साइंस में हम काम करते हैं कि हमारे पास किसी भी चीज़ को या किसी भी दवा को या किसी भी ट्रीटमेंट लेने का क्या एविडेंस है। तो आजकल जो हम साइंस प्रैक्टिस करते हैं वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। चाहे हम कोई दवाइयाँ दें ब्लड प्रेशर की, किडनी की, डायलिसिस दें या ट्रांसप्लांट दें, वो उसके ऊपर बेस्ड होता है। मुझे नहीं लगता कि आयुर्वेद में ऐसा कोई एविडेंस है कि किसी ने रिसर्च की है किडनी की बीमारी के ऊपर और फिर दवा दे रहे हैं। आयुर्वेद बहुत अच्छा साइंस है, लेकिन उसका जो लिखा हुआ है वो 1000 साल या 2000 साल पुराना है। तो जब तक कोई रिसर्च, और जो सारे जो हमें किडनी की बीमारी का टेस्ट जो होते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, वो सारे रिसेंट हैं। तो अगर और बायोप्सीज करते हैं, तो अगर आपको बीमारी का ही पता नहीं है और किडनी की बहुत सारी तरह की बीमारियां होती, तो आप इलाज कैसे करोगे? पहली चीज़ तो उसका कोई एविडेंस नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि मैंने देखा है और आजकल मैं ऐसा कर रहा हूँ कि लोग आयुर्वेदिक दवा खा के आते हैं और उनकी किडनी में खराबी बढ़ जाती है। And nowadays, what I am doing, I am collecting those drugs. I am asking the patient कि कौन कौन सी दवाइयाँ हैं, because क्या होता है कि they get this thing कि लोग कह देते हैं कि नहीं आयुर्वेदिक दवाइयों से किडनी ठीक हो जाएगी। ठीक तो नहीं होती, बट खराब और हो जाती है। और हमारे जो कई सारे पेशेंट्स हैं जिनको डायलिसिस हो रही है, जिनका ट्रांसप्लांट हो रहा है, उसमें से 90% लोग इस तरह की चीज़ों को ट्राई कर चुके हैं और देन दे कम टू अस एंड कम टू एलोपैथी, एंड देन दे एक्सेप्ट कि ये हमने लिया और कुछ फ़ायदा नहीं हुआ या खराबी बढ़ गई और ऐसा हो रहा है। तो कुछ दवाइयाँ लोग लेते हैं आयुर्वेद की ही कि इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो शायद कोविड से थोड़ा बच पाएंगे, और वो देखिए, अब ये बड़ा कहना मुश्किल है। आपने कोई दवा ली, आप कहते हो उससे इम्यूनिटी बढ़ी, आपने कैसे चेक किया आपकी इम्यूनिटी बढ़ रही है? हाउ डू यू नो? सो दिस इज ऑल एजम्पशन। आपके पास कोई तरीका है ये बताने का कि आपकी इस दवा लेने से इम्यूनिटी बढ़ गई? तो उसके साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस रहते हैं फिर? पार्डन? उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अपने शरीर पर? साइड इफेक्ट्स? Side effect? Yes, there are side effects. That's what I am telling. Recently, I had many patients जो कि आयुर्वेदिक दवा because of this belief कि उनकी किडनी में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, they took these drugs और उनकी किडनी में खराबी एकदम से बढ़ गई और initially they did not actually accepted this thing. लेकिन बाद में जब वो ठीक हो गए हमारे उससे, तो फिर बाद में उन्होंने बताया हाँ उन्होंने ये दवाइयाँ ली। तो इनके बहुत साइड इफेक्ट होते हैं। देयर इज क्लियर कट guiding from the kidney organization, of the world, kidney disease international organization, that herbal medicine
should not be taken in patient with kidney disease. We have सुखदेव दास अधिकारी, आपको हाय लिखते हैं। सुखदेव जी कोई Hello. सवाल है तो आप सवाल है तो भी लिख सकते हैं। एंड एक सवाल है रुद्राक्ष की तरफ से, वो पूछते हैं कैन किडनी रिकवर आफ्टर कोविड-19? यस, अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम कोविड-19 की वजह से हुई है, एक्यूट किडनी इंजरी, और अगर आपका कोविड ठीक हो जाता है तो किडनी की इंजरी भी जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादातर लोगों में ठीक हो जाती है। लेकिन हमको ये दूसरी चीज़ ये है कि अगर एक्यूट किडनी इंजरी चाहे कोविड की वजह से हो चाहे किसी और वजह से हो, जैसे कई बार दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं, कई बार बॉडी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए या कोई पेंक्रेटाइटिस हो जाए या बर्न्स हो जाए, उसकी वजह से होती है, तो कुछ लोगों को इसके लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट रह जाते हैं। तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कई बार कंप्लीटली रिकवर नहीं होती, माइल्ड प्रॉब्लम थोड़ा रह जाती है, तो लोगों को इसको फॉलो अप करते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए आगे की ये किडनी में अगर कुछ प्रॉब्लम रह तो नहीं गई है और ये आगे बढ़ तो नहीं जाएगी, तो ये जरूरी है कि उसको फॉलो अप करते रहें। We have Rajni Sudhanshu. Good morning, sir. आपको लिख रहे हैं। मॉर्निंग में एंड एक सवाल है गुप्तेश्वर सिंह की तरफ से है, कैन पेशेंट्स रिसीव किडनी transplants during this time? If they are more, if yes, are they more likely to develop complications due to COVID? देखिए, जब ये कोविड के लिए वजह से इंडिया में लॉकडाउन हुआ था, तब लगभग बहुत सारे सेंटर्स ने, ज़्यादातर सेंटर्स ने किडनी ट्रांसप्लांट करना बंद कर दिया था इंडिया में और पूरी दुनिया में भी, और वो काफ़ी समय तक ट्रांसप्लांट नहीं किया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रांसप्लांट कब तक नहीं करोगे, बिकॉज डायलिसिस में जो लंबे समय तक रहते हैं उनकी लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती, उनको कॉम्प्लिकेशन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और उनको डायलिसिस में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, अस्पताल में 2-3 बार आना पड़ता है हर हफ्ते डायलिसिस के लिए। तो ट्रांसप्लांट इस समय पे हो सकता है और हम कर रहे हैं सारी प्रिकॉशंस लेके। उसमें प्रिकॉशंस ये है कि भाई जब आपका ट्रांसप्लांट के लिए अगर आपके इवैल्यूएशन चल रहा है तो उस समय पे आप लोगों से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, आपके साथ में जो लोग हैं, तो यू हैव टू अवॉइड कि गेटिंग इन टच विद पीपल सो दैट कि आपको ना डेवलप हो। सेकेंडली कि जब भी ट्रांसप्लांट की सर्जरी होती है उससे 2-3 दिन पहले ये टेस्ट कराया जाता है कि पॉजिटिव तो नहीं है, इवन आपको सिम्टम्स नहीं है। और एक बार अगर ट्रांसप्लांट जब नेगेटिव है उसके बाद होता है, अब कोविड तो उसके बाद भी किसी को हो सकता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट हो चाहे नहीं हो, अगर आप घर से बाहर निकले हैं या घर पे भी हैं या कैसे भी हैं, कोविड तो हो सकता है। तो कोविड अगर होता है तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपको किस तरह के, माइल्ड है, सीवियर है। अगर माइल्ड टू मॉडरेट हमने देखा है ज़्यादातर लोगों में, जैसे कुछ लोगों में अगर हुआ भी है तो वो ठीक हो जाता है, कुछ कुछ तो 10 में से एक आदमी को सीवियर हो सकता है। तो दैट इज़ योर लक, बट फॉर्चुनेटली हमने इस दौरान जब लॉकडाउन खुलने के बाद जितने भी ट्रांसप्लांट किए हैं उसमें से किसी भी पेशेंट को अभी तक ट्रांसप्लांट के बाद कोविड नहीं हुआ। हाँ, कई सारे लोग जो पहले से जिनका ट्रांसप्लांट हुआ था जो अपने घर पे थे और उनको कोविड हो गया, तो ऐसा नहीं है कि अभी इस समय करने से हो जाएगा, पहले से है तो भी हो सकता है। अगर आप प्रिकॉशन लेंगे तो चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो ये डिसाइड करना पड़ेगा पर्सन को कि उसको करना है। तो वी गिव अ चॉइस ऑप्शन टू दी पेशेंट वेदर दीज आर द रिस्क एंड वेदर यू वांट, एंड पीपल आर डूइंग इट। एंड मेरी प्रैक्टिस में पिछले 3 महीने में किसी को ट्रांसप्लांट के तुरंत बाद कोविड नहीं हुआ। मोहम्मद अशरफ अली लिखते हैं, previously only I used to wear mask, nowadays everyone is wearing it, so I am more safe than before. So, Yeah, you have answered your question. You are more safe than before. So it's important that everybody wears a mask. but he also should continue to wear a mask. विनय राणा जी हैं हमारे साथ, लिखते हैं गुड मॉर्निंग डॉक्टर, सेंडिंग गुड मॉर्निंग। Okay, we have a question coming from Ashutosh Shekhar. He writes, do you recommend any special diet during this time for patients with CKD? So, see, everybody, including the patient with CKD, should take healthy diet. Healthy diet means you have to include more fruits or vegetables. In diet, you should avoid taking high fat diet, oil, fried thing, and salt.
less salt and less these things. That is, and you should exercise regularly. So, but there is no particular किडनी के पेशेंट में कई बार कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो उनको उन रिस्ट्रिक्शंस का फॉलो करना पड़ेगा अभी भी, जैसे कि वो नॉर्मल टाइम में करते हैं. तो कोई स्पेशल डाइट की ज़रूरत नहीं है, बट दे शुड टॉक टू देयर डॉक्टर बिकॉज किडनी पेशेंट्स हैव मेनी रिस्ट्रिक्शन. तो डाइट क्या लेनी है मीन्स नॉर्मल पर्सन कैन टेक ऑल दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, बट किडनी पेशेंट को कुछ कुछ चीज़ें कुछ पेशेंट्स को मना रहती हैं, तो उन चीज़ों को उनको अवॉइड करना पड़ेगा, स्पेशली हाई पोटेशियम वाली चीज़ें जिनका डायलिसिस चल रहा है या जिनका पोटेशियम बढ़ा हुआ रहता है. ठीक, तो उनको वो चीज़ें लेना पड़ेगा. अगर किसी का पोटेशियम ज़्यादा नहीं है तो फिर fruits, vegetables, and all normal stuff he can take. There is no any nothing special about diet in this stuff. Be it COVID or be it a non-COVID state, अपने किडनी को हमेशा एक स्माइलिंग हार्ट की तरह स्माइलिंग किडनी रखने के लिए व्हाट डू यू रिकमेंड? सी, तो किडनी को जैसा मैंने बताया कि किडनी की प्रॉब्लम आजकल एक्चुअली काफ़ी बढ़ रही है, और किडनी की प्रॉब्लम किस जो वजह जो होती है, मेन डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये काफ़ी लोगों को होता है. तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जिनको रिस्क फैक्टर है किडनी डिसीज़ के लिए, उनको अपनी उस प्रॉब्लम का ठीक से दवा लेना चाहिए जिससे कि किडनी की प्रॉब्लम डेवलप ही ना हो. तो वी शुड फोकस ऑन प्रिवेंशन, कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़, कंट्रोल ऑफ हाइपरटेंशन. अगर स्टोन्स हैं आपकी किडनी में तो उनको आप टाइम पे उसको ट्रीट करवाएं. ठीक, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल करें. एंड उसको कंट्रोल करने से किडनी की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों में होगी नहीं. अब जिनको अनफॉर्चुनेटली अगर हो जाती है तो ओबियसली उनको फिर अपनी जो भी दवाइयाँ हैं, जो भी आपके ट्रीटमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आपके नेफ्रोलॉजिस्ट से बात करके और उनके कांटेक्ट में रह के, बिकॉज दिस इज़ वेरी स्पेसिफिक. कोई एक सबके लिए जनरल एडवाइस नहीं हो सकती. ठीक, इट डिपेंड्स ही. We have Anil Mehta writing, Dr. Sahab, namaskar. After transplant, which special diet we should take during COVID? Transplant के बाद की बात कर रहे हैं. सी, देयर इज नो स्पेशल डाइट. अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए जो आपकी डाइट है, स्पेशली कि डायबिटीज़ में आजकल कोई ऐसी स्पेशल डाइट नहीं होती है. आपको अच्छे फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, नॉर्मल नमक कम लेना है, फ्राइड चीज़ें अवॉइड करनी है, ऑयली चीज़ें कम लेना है. यही चीज़ें आपको करनी होती हैं. और यू नो, देखिए पीपल नो कि कौन सी चीज़ हेल्दी है या कौन सी हेल्दी नहीं है. तो केवल किडनी के पेशेंट्स को अगर कुछ स्पेशल इशू है, हाइपरटेंशन है, तो उसको नमक कम लेना पड़ेगा. अगर उसका पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो दे हैव ऑलवेज द लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर हाई इन पोटेशियम, उनको अवॉइड करना पड़ेगा. लेकिन जिनका पोटेशियम ठीक है तो वो सारी सब्जियां, सारे फल और वो सारी चीज़ें ले सकते हैं. ऐसा कोई स्पेशल डाइट नहीं है. जिससे हेल्दी डाइट जो कि सब लोग ले सकते हैं. अगर आप ले सकते हैं, नट्स लें, फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें. सो दिस इज़ मोर रेदर देन टेकिंग मोर कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादा जो या मिठाई या नमकीन या फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें अवॉइड करना चाहिए, अब कम से कम लेना चाहिए. So, one question we have: what if patients with kidney issues feels more depressed than usual? So, will it aggravate the situation? See, depression, any psychological condition will also have effect on the somatic function, psychosomatic things they occur. So anybody who is depressed, more chances that he can miss his medications. अपना जो डायलिसिस से मिस कर सकते हैं, दवाइयाँ मिस कर सकते हैं. तो अगर आप दवाइयाँ मिस करेंगे तो उसकी वजह से फिर आपका या ब्लड प्रेशर या शुगर बढ़ गया तो दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम. अगर आप ट्रांसप्लांट के बाद अपनी दवाइयाँ अगर मिस करेंगे तो उसके बाद आप किडनी में रिजेक्शन हो सकता है. तो ऑब्वियसली डिप्रेशन इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू मैनी ऑफ द डिसीजेज और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं. तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, यू आर फीलिंग डिप्रेस्ड, देन यू शुड कंसल्ट विद समवन नियर और यू शुड take professional help is required. You should not ignore this. और वो जो पहले एक टैबू जैसा था कि आपको एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में आपको शर्म आती है या झिझक होती है, वो सब अब वो दौर भी खत्म हो चुका है. सो वन कैन इजीली कंसल्ट. मोहम्मद मुअज्जम राइट्स, गुड मॉर्निंग सर.
And Rajni Sudhanshu लिखती है, sir, after transplant, how we prevent from COVID-19 is that time mask, social distances, crowded area restricted, but after long time using the mask, breathing problems are generated. ओके, इसको जैसे ट्रांसप्लांट करने के बाद अगर आपने मास्क पहना है और लंबे समय तक पहनते हैं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, ऐसा है कि एक तो मास्क को कब पहनना है कब नहीं पहनना है ये इम्पोर्टेंट है। जैसे आप अगर घर में हैं तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर घर में कोई ऐसा पर्सन नहीं है तो आजकल के टाइम पे बाहर तो बहुत ही कम लोग जाते हैं, अपना घर से काम भी ज़्यादातर लोग अपना घर से ही कर रहे हैं। तो अगर आप घर पे हैं तो मास्क ना पहने। अगर आप अपनी कार में अपने उससे जा रहे हैं अकेले और विंडो आपकी लगी हुई है तो मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप पब्लिक प्लेसेस पे जाएंगे या फिर हॉस्पिटल में जाएंगे तो ज़रूर आपको मास्क पहनना पड़ेगा। तो उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज़ उसको ऐसे करने पे तो चांसेस हैं कि आपको इन्फेक्शन डेवलप हो जाए। और किसी का अगर ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसके लिए अगर इन्फेक्शन डेवलप होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम थोड़ी ज़्यादा हो सकती है बजाय कि नॉर्मल पर्सन के। तो ये कर सकते हैं कि भाई हम एक नॉर्मल सर्जिकल मास्क पहन लें। N95 मास्क केवल उन्हीं जगह पे पहने जैसे कि जो हॉस्पिटल जा रहे हैं या बहुत हाई रिस्क जोन है। नॉर्मली आपको वो मास्क हर समय बाहर पहनने की, जैसे अगर आप वॉक करने जा रहे हैं तो आप सिंपल एक सर्जिकल मास्क या क्लॉथ मास्क पहन सकते हैं। ठीक, उनमें इतनी सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। आप हॉस्पिटल जा रहे हैं या ऐसी जगह जा रहे हैं जो क्लोज प्लेस है और जहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन नहीं है तो फिर वहाँ पे आपको बेटर मास्क पहनना पड़ेगा, बिकॉज यू कैन नॉट मेंटेन, इफ़ यू कैन मेंटेन डिस्टेंस, इफ यू देन यू नीड नॉट टू वियर ए वेरी गुड मास्क। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि अगर आपके पास और सवाल है तो आप लिख भेजिए, क्योंकि इवन आफ्टर द शो के बाद भी डॉक्टर उन सवाल को देख सकते हैं और आपको रिप्लाई कर सकते हैं अगर आप टाइम पे नहीं ज्वाइन कर पाए हैं तो प्लीज क्वेश्चन, प्लीज लाइक द पेज, खबर के पेज को लाइक कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपको आज शाम के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहूंगी कि आज शाम हमारे साथ 7 बजे होंगी बहुत ही मशहूर वोकलिस्ट, ग्वालियर घराने से ताल्लुक रखती हैं मीता पंडित। आप इनके साथ भी जुड़ सकते हैं शाम 7 बजे नेशनल खबर के पेज पर। तो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम, और आपने सारे सवालों का बहुत ही सुंदरता से जवाब दिया है, एंड आई होप दे विल बी हेल्पफुल टू द व्यूअर्स। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए एंड प्लीज टेक मोर सेशंस सो दैट इट बेनिफिट्स द व्यूअर्स। थैंक्स सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, Shweta, for conducting a very good program, and I must congratulate you on your effort to increase awareness about various things and health topics. So you are doing a very good job. I hope you will continue to do these type of programs and other program for the benefit of people. थैंक यू। Okay, thank you. Good day. अभी के लिए बस इतना ही, आपसे लेती हूँ इजाजत। शाम 7 बजे आपसे फिर जुड़ती हूँ।